Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tatho Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir-bhavati Naistaki Grantra Srimad Bhagavatam ki Jai. Om Ajnana-dvaririndasya Jnananjana-shalakaya Chakshunvatam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rup Kada Vayyam Dadati Swapadantikam Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatam Ham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam. श्रील प्रभुपाद की जय. सभी हट्टे भक्तों की जय. हरे कृष्णा. आप लोग आगे आ सकते हैं. Thank you very much all of you, and thank you Vivek Prabhu for arranging this wonderful place. Of course, he makes us all instrument. You know what is favorite instrument of Lord Krishna? Bansuri. We can also become instrument. Correct? Instrument has two meanings. One is the flute instrument, other one is the instrument. That is become somebody's. What do you say? Doing something on behalf of somebody. Means to do. Yes. So, let's take little bit about Mother Durga also. Navratras are going on. Srimad Bhagavatam tells us Lord Krishna awarded some names as glorification to Mother Durga. It comes in Srimad Bhagavatam. Few verses, but they are there. This much reasonable, no worries. We have tolerated more. Just joking. आज सारे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए. Oh, how come they are not going? जय हो. Okay. I sent out the PPT on the group. Those who would have downloaded, they can, so that they can participate in it. 10 to 7, first one. Anybody would like to read the translation? It's not a class, it is an interaction. यहाँ पे कोई ये नहीं है एक जना बताएगा दूसरे सुनेंगे. यहाँ we are copying pasting from Srimad Bhagavatam. Bodhayanta parasparam katyantascha mam nityam tushyanti ta ramanti cha. If we are going to do a monologue, there is no tushyanti cha ramanti cha. What is tushyanti cha ramanti cha? Tushyanti, getting satisfied, and ramanti cha, you enjoy the bliss of Krishna. When do you do? Bodhayanta parasparam. If you are on your own, if you speak, or you just one person speaking, one person, no, you cannot enjoy it. This is Bhagavatam is saying, I am not saying it. I think you can experience it. Okay, who is going to read? First one, who, loudly please. Yes, please. The Lord ordered Yoga Maya. O my potency, who are worshipable for the entire world, and whose nature is to bestow good fortune upon all living entities, go to Varaja, where there live many coward men and their wives,
In that very beautiful land where many cows reside, Rohini, the wife of Vasudeva, is living at the home of Nanda Maharaja. Other wives of Vasudeva are also living there incognito because of fear of Kamsa. Please go there. So what is the background here? What is the katha here? Anybody? क्या कथा चल रही है यहाँ पे? योग माया का एक्सचेंज. योग माया का exchange. This was the first and I think, I don't know if it is possible nowadays, but the embryo transplant. Everybody thought that the seventh child of Devaki, what has happened? There is a miscarriage. But actually, Lord Krishna asked the Yoga Maya, please go there and arrange for the transplant of Balaramji, Ananta Shesha, who was in Devaki's womb to transplant in Rohini mothers. So he said, oh my potency, he told Yoga Maya. See, one thing we have to be very clear. The energy of Krishna is not separable from Lord Krishna. You cannot say, Prabhuji, you can take out your energy and keep it here. You cannot do. Therefore, the worship, she cannot be separated. She is inseparable. Then there are two major. One is Mahamaya and one is Yoga Maya. Bas. एक के चक्कर में उद्धार, एक के चक्कर में संसार. Simple. So he told Durga Mata. Durga means what? Durg means fort. ये जो material fort है, इसमें से बाहर निकलने के लिए she is the in charge. उनका परमिशन चाहिए, नहीं तो बाहर नहीं निकाल सकते. तो ना बोला वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रोनी माता है, वहाँ पे आप वहाँ पे जाओ. And next one, who's going to read? 10.2. You transfer Balram to Rohini womb. Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila. Within the womb of Devaki is my partial planetary expansion, known as Sankarshana or Sesha. Without difficulty, transfer him into the womb of Rohini. So Krishna told Yoga Maya, please do the transplant. Take Balramji from Devaki's womb and put it in there. And then he said, after that I will appear as son of Devaki. And you will appear as daughter of Yashoda. So the eighth child when he was born, just close the door please. So the eighth child when he will be born, at that time Yashoda is going to have a daughter. Who is that daughter? Yoga Maya. So how much work she is facilitating. She is also the instrument. Flute is not only the instrument. We all can be instrument. Okay, anybody else who's going to read? Question, I have a question. हाँ बोलिए प्रभु. Sankarshan is a different expansion and Balram is a different expansion. नहीं same. Sankarshan, Balram, Ananta Shesh, they're all pastimes can be little different, but expansion from. So Sankarshan has not come from the Balram because Krishna said Balram and. See, frankly speaking, no need to get in technicality who came. For example, when you take the creation, so then there is Krishna, then after that there is Vishnu, then there is Mahavishnu, and then there is Garbhodakshai. They are all Vishnu तत्व. उतने में ही काफी है. ज़्यादा दिमाग लगाया तो. क्योंकि थोड़ा संकर्षण और बलराम अलग-अलग बोला है, मतलब सेम बोला इसलिए. नहीं, basically the pastime can be different. Balram ji came as he is non-different from Krishna, but he is in the position to, he wants to serve, so he came as that. Eka Bahushyama, Krishna is only one, rest everybody is Ansh, and the potency of each Ansh is different. Their potency is very high, my potency is like a mosquito. So ऐसा है. So he said, I will appear as, okay, anybody else going to read? हाँ प्रभु. Srimad Bhagavatam 10.2.9. I will appear as son of Devaki. You will appear as daughter of Yashoda.
Translation: O all auspicious Yogamaya, I shall then appear with my full 6 opulent senses as the son of Devaki, and you will appear as the daughter of the mother Yashoda of Maharaja Nanda. Text 10.2.10. You are the supreme means bestowing material desires. By sacrificing of animals, ordinary human beings will worship you joyously with various paraphernalia, because you are the supreme in fulfilling the material desires of everyone. So he said, you please go there, take birth there, because when Nanda Maharaj is going to go, he is going to exchange, and then Yogamaya is going to come. And then he said, by sacrifices of animals, and because you are supreme in fulfilling the material desires of everyone. So, Material desire. so energies are unlimited. Primarily two, if you take internal and external, they are interchangeable. If energy is external energy, she is Durga. And if she is internal energy, then Radharani. And both are interchangeable. Just like we go to different websites. If you go to some bad website, that also is a website. If you go to other one, devotional website, the mood will completely change. Like that. And there you go. This is the verse which I was wanting to cover. Please repeat after me. 10 to 12, 12. Please repeat. Namadheyani kurvanti sthanani cha narabhuvi Durga iti Bhadrakaliti Vijaya Vaishnava iti cha Kumoda Chandika Krishna Madhavi Kanyaka iti cha Maya Narayani Shani Sharadeti Ambike iti cha. Before we go to translation, let us see what are names you can read. People think Sanskrit is very difficult. ये सारे नेम है प्रभु इसमें। Krishna is awarding her own external or internal energy which is inseparable with these names, because she is going to perform all the activities for him. Therefore all these names he is awarded. What are the names? One by one, let's see. Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna. Krishna is also her name. Many Matajis have name Krishna, if you know. It is this name, Krishna. It says Krishna's name of Draupadi ka dusra naam. Krishna, yes. Draupadi. Yes, she was also called Krishna. Yes, that is correct, because of the bluish color. Yes. Bhadrakali is also because of that. I have been to Dakshineshwar temple. Oh, fantastic temple. You feel like. But of course, the rasa and this one is, it depends if you. But without her permission, we cannot cross over. Therefore, we should also pay our obeisances to Mother Durga. Please allow entry. See, everything in this world is either a number or an excess. Everything is a number. How? Let's start with Krishna. He is Advitiya. He is number one. What else? In this material world, everything is in numbers. Panchabhuta, Saptarishi, Navkanya, Navagraha. Now let's come to our daily life. Everything Krishna is monitoring by numbers.
How? 7 days. 7 days? 108? 24 घंटे. Every second. If you do blood test, दो पक्ष. your readings are in numbers. It has a reference value. BP is in numbers. Human life is defined by heartbeats. Heartbeats is in numbers. That one Advitiya is managing all the numbers. Master of all the maths. Master of all numbers. Advitiya. Kumuda. Then Achandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka. Any guesses where is Kanyaka? Kanyakumari. Wonderful. Maya. Maya. What is the meaning of Maya? Translation. Illusion. Illusion. That which is not. That is definition of Maya. जो नहीं है उसका नाम माया है. और just but see how Krishna arranges. When we say Maya hai, so hai is Krishna there, and Maya is the illusion there. With illusion also Krishna is there. So it is my choice whether I try to go towards Maya or hai. Maya hai, everything is hai, right? Narayani Shina, Narayani Shani, Sharada, Ambike. Ambike. Now something Prabhupada writes that names of Maya Devi in different places have been listed by Vallabhacharya, who started the Pushti Sampradaya. He was also of the same time as Chaitanya Mahaprabhu. Of course, he started that. So now he tells where are these names associated. In Varanasi, she is known as Durga. Of course, other places also, but primarily. In Avanti, she is known as Bhadrakali. In Odisha, she is known as Vijaya. In Kolhapura, she is known as Vaishnavi or Mahalakshmi. In Kamarupa, she is called Chandika. In northern India, she is called Sharada. In Cape Comorin, that is Kanyakumari, as Kanyaka. Thus, she is distributed according to various names in various places. I found something very nice, interesting here. So Durga Maiya ki Jai. Okay, now let's come to the Prachina Bhari. क्या समय हो गया प्रभु जी? प्रभु 9. Okay. Good thing is that if we can tolerate each other, this hall is available till 11. But anyway, prasadam and children we will make sure to finish on time, but 10 minutes here there we can perhaps. Okay. So what is the story of Prachina Bhari also for the benefit of the newcomers? Let us take one by one turn and close. Okay. So क्या कहानी है जी पुरंजन की? Naradpuri was telling story to Prachina Bhari. And who is Prachina Bhari? the father of Pracheta. Father of Prachetas. And Narad ji is telling what is the question he asked to Prachina Bhari? What is the use of your material? Use nahi, what he said is But you are getting out. what will you finally get if you do sense gratification? मतलब वही है, but he put it a little bit more screwdriver अंदर पेट में डाल दिया. भाई जवाब दो इसका. So what was the answer Prachina Bhari said? भाई मुझे भी नहीं पता. Why I am doing all this I don't know. प्रभुपाद राइट हमारा भी यही हाल है. काम कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं नहीं पता. बस घूम रहे हैं. Then Narad ji was very merciful. So he told one katha. To whom?
प्रचीना भारी। बच्चे उसको बंद कर दें, डोंट कीप इट ओपन, क्लोज इट। यू वांट वाटर, टेक। Okay. It's okay, you finish, then I will start. आज ये हॉल आपका बराबर यूज हो जाएगा। I am waiting. और चाहिए? One more glass? It's okay. He felt a little awkward that suddenly there is pin drop silence while I am taking water. हाँ जी, प्रभु जी बंद कर दीजिए, उनको बाहर आनंद लेने दीजिए। हाँ जी, वेयर वाज आई? हाँ, तो क्या कथा उन्होंने किसको सुना रहे हैं? प्रचीना भारी को। और वो कथा में क्या बता रहे हैं? हाँ? पुरंजन की कथा सुना रहे हैं। पुरंजन कौन है जी? पुरंजन हम सब पुरंजन है, प्रचीना भारी भी पुरंजन है। यानी कि द एंटिटी, द लिविंग एंटिटी इज पुरंजन। और पुरंजन क्या कर रहा है? भटक रहा है। क्या ढूंढ रहा है? बेस्ट प्लेस। हाँ, एक ढूंढ रहा है जगह जहां मजे कर सके। पूरा संसार में, ज्यादा लाउड तो नहीं है, पूरा संसार में घूम रहा है। क्या ढूंढ रहा है? घूमते घूमते रहने की जगह। और उस जगह में रह के क्या करना चाहता है? एंजॉय। किस किस्म का एंजॉयमेंट? भोगावती के बराबर। स्वर्ग में एक सिटी का नाम है भोगावती। द नेम सेज इट ऑल। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। जितने भी ये देवता हैं, कुछ भी कष्ट होता है तो कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु के पास जाते हैं। कितनी बार दर्शन कर लेते होंगे वो? 8-10 बार तो कर ही लेते होंगे साल में। लेकिन फिर भी वापस गोलोक नहीं जा पाते। उसको, उनको पहले यहाँ आना पड़ता है। ऐसा क्यों? हाँ, बिकॉज वहां पे इतने ज्यादा भोग हैं कि भगवान को देखते हुए भी भगवान नहीं दिख रहे। सो मच एनग्रॉस्ड इन एंजॉयमेंट की भगवान से भी। जैसे वो एक ओल्ड लेडी थी, आपने सुना ही होगा, वो एक जंगल में जा रही थी। उसके सिर पे क्या था? गट्ठर था, उसमें लकड़ियां थी, उसने जो काट के रखी थी। वो गट्ठर गिर गया, अब उसको आर्थराइटिस था। तो अब झुके कैसे? तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो अम्मा क्या चाहिए? बोले आप ये गठरी उठा के सिर पर रख दो। तो यही हाल है। तो वो ढूंढ रहा था जगह जगह कि कहां पे मैं, लेकिन क्या उस ऐसी जगह मिली? भागवतम टेल्स अस उसको ऐसी जगह नहीं मिली जहां पे वो उसको पूर्ण आनंद ले सके। आप सब, मैं अपना, आई एम इंक्लूडेड इन दैट, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, मैंने कोई सा भी मटेरियल भोग किया है उसमें 100% आनंद नहीं मिला। किसी को मिला हो तो हाथ उठाइए। रेटोरिक क्वेश्चन है, मजाक के लिए, क्वेश्चन के लिए नहीं पूछा जा रहा। तो ये सिचुएशन है। वो घूमते घूमते कहाँ पहुंचा जी? साउथ साइड ऑफ हिमालयास। और वहां पे उसे क्या मिला? सिटी विद 9 गेट्स। अब इसमें ध्यान देने की बात है, एक तरफ कथा चलेगी और एक तरफ उसका जो दूसरा मीनिंग है वो चलेगा। वो हमारे मतलब के लिए, इसीलिए उसको सुना रहे हैं। नारद जी उसको डायरेक्टली नहीं सुना रहे हैं। बुरा लग गया तो, वो भी दक्ष प्रजापति था भाई, ब्रह्मा जी का परंपरा से आ रहा था। तो ऑफिस में भी आप देखिए, डायरेक्टली अगर बॉस अच्छा है तो मुंह पे नहीं बोलेगा ज़्यादा, या बोलेगा तो 1 to 1 बोलेगा। यहाँ तो 1 to 1 भी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, वो सीधा नहीं बोल रहे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो पुरंजन है वो एक सिटी ऑफ 9 गेट्स में पहुंचा। तो ये सिटी ऑफ 9 गेट्स क्या है?
हमारी बॉडी है। जीवात्मा अंदर बैठी हुई है, 9 गेट्स। कौन से 9 गेट्स? 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नीचे, 9 गेट्स आ गए। अब उसको देख के बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे तरह तरह के कैनाल्स, झरने, गार्डन्स, जैसे कि इस बॉडी के अंदर वेन्स, वेसल्स, सारी सामग्री भगवान ने मौजूद कर दे रखी है। मटेरियल एंजॉयमेंट की भी और स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट की तो है ही कह रहा था। दोनों अंदर ठूस के भर दिया भगवान ने। जाओ बच्चे कौन सा चूज करते हो, तुम्हारी मर्जी। फिर दयावान इतने कि चलो मैं भी साथ में चलता हूं। अब साहब क्या हुआ, वहां पहुंचे तो वहां पे उसको कौन मिला? एक सुंदर कन्या मिली। वो सुंदर कन्या, ब्यूटीफुल गर्ल, किसके साथ घूम रही थी? सर्वेंट्स के साथ। कितने थे जी वो? 10 सर्वेंट थे। 10 के 100 वाइफ। ये भागवतम ऐसी चीज है। अब अगली बार अगर मैं कोई भोग भोगने जाऊंगा अरे यार ये क्या हो रहा है, ये 10 में से एक ने पकड़ लिया, पीछे 100 हो रहे तो 10 कौन है जी? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। हाँ, 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। और हर एक 10 के साथ में हंड्रेड्स ऑफ वाइफ्स हैं। वो कौन है? डिजायर्स हैं। अगर आप एक टेस्ट का ही लेते हैं, पूरे इंडिया का मेन्यू आप नहीं खत्म कर सकते, इतनी वैरायटी है। नहीं, देयर इज अनलिमिटेड। हरे कृष्णा, देयर इज अनलिमिटेड वैरायटी। एक जीभ के पीछे आप कितने क्यूसीन खा सकते हैं? 100 छोड़ो, हजारों लाखों क्यूसीन खा सकते हैं एक जीभ से। वो है उनकी फॉलोअर्स। हरे कृष्णा। तो अब साहब वो लड़की थी वहां पे, तो पहले तो अब वो लड़की हमारी इस कथा में जैसे 9 गेट्स के अंदर लिविंग एंटिटी है, ऐसे वो लड़की कौन है? इंटेलिजेंस है। पर कौन सी इंटेलिजेंस है? बाहर बच्चे खेल रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जस्ट FYI। नो, आई एम नॉट परसुएडिंग यू टू गो, बट हाँ जी, कौन सी इंटेलिजेंस है? मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस है। इसका क्या प्रूफ है? वैसे तो प्रूफ ही प्रूफ है। जब दूसरी वाली बुद्धि देते हैं तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। असली बुद्धि मैं तब देता हूं, उसके पहले ये वाली बुद्धि होती है, सुंदर कन्या रूपी बुद्धि। अब लिविंग एंटिटी को और क्या चाहिए? अब आप ये देखिए, लेट मी जस्ट फर्स्ट से दैट वन, आई विल कम बैक टू दिस। हाँ जी, प्लीज रिपीट। इंद्रियाणि मनोबुद्धेर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोहति एष। मैं आगे चला गया हूँ, सॉरी। 340 भगवद गीता है। ज्ञानम अवृत्य देहिनाम, मुझे ये नहीं पता था, ये पढ़ के प्लीज क्लोज इट। द सेंसेस, प्लीज रिपीट। द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ द लस्ट। खाली माइंड में नहीं है। आई यूज टू थिंक माइंड में लस्ट है, इंटेलिजेंस संभाल लेगी। अरे इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंस सही नहीं है, भ्रष्ट बुद्धि है। इट इज मटेरियल इंटेलिजेंस विच इज देयर। सो एनीवे, लेट्स कम बैक टू द श्लोका वी वर ऑन टू। हाँ जी, अब पुरंजन ने उस मटेरियल इंटेलिजेंस को देखा, यानी उस सुंदर कन्या को देखा। वो सुंदर कन्या वॉज ऑल्सो वेरी लस्टी, बिकॉज मटेरियल इंटेलिजेंस इज नॉट
Simple. Simply pure. The material intelligence is influenced by the mind. माइंड तो पक्का दुश्मन है. माइंड कैसे है? जैसे अगर आप ग्रेविटी की तरह है, अगर आप पानी डालोगे तो पानी कहाँ जाएगा? ऐसे ही माइंड है, उसको छोड़ के देखो आप. हम माइंड में प्रभु मन की तो बात नहीं कर रहे. हाँ, मन बुद्धि अहंकार. Intelligence तो विवेक. हाँ, क्या है वो? देखिए, भूमि, रापो, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता. 8 है. मन जो है वो माइंड है, जो कि क्या है? वो प्रमाति बलवत दृढ़म, पागल हाथी की तरह है. जब तक बात नहीं मनवा लेता तब तक उठा पटक चलती रहती है. नहीं, इसमें मैं खुद कह सकता हूँ क्योंकि मैं भुक्त भोगी हूँ इसका, इसलिए ऐसा नहीं है कि इसके लिए भागवतम की जरूरत है. करेक्ट है. मन तो बहुत चंचल है. तो उस मटेरियल इंटेलिजेंस को देख करके अब पुरंजन ने क्या कहा? चलिए जी, पहले ट्रांसलेशन लेते हैं, देन वी विल डू द श्लोका. बोलिए जी, हु इज गोइंग टू रीड 4:25-26? ये भद्रकाली वाले बाद में एक गैप है, उसके बाद वाली स्लाइड है. आप पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन पढ़िए. Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. जोर से. My dear lotus eye, Hmm. kindly explain to me where you are coming from, who you are, and whose daughter you are. You appear very chaste. What is the purpose of your coming here? What are you trying to do? Please explain all these things to me. तो पुरंजन क्या पूछ रहा है उस लड़की से? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारे पिताजी कौन है? क्यों घूम रही हो भैया यहाँ पे? अब देखिए इसको संस्कृत में कैसे है. क त्वम कंज पलाक्षाक्षी कस्य असि कुतः सती इमाम उपपुरम भीरु किम चिकीर्षसि शंसमे. शम्स में मुझे बताओ. तो आज की दुनिया में ये होता है, व्हेन अ बॉय एंड अ गर्ल व्हेन दे मीट, तो अगर उसको लड़की जम गई, बोला नहीं इससे बात करनी है, तो जाके पूछ लेते हैं भाई आप कौन है, कहाँ से आई हैं. आजकल तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बट सैलरी कितना है? सही बात है. फिर घर पे जाके टेबल में कंपैरिजन, इसकी इतनी उसकी उतनी है. सही बात है. क्या भगवान ने क्या बनाया. मतलब एक वर्ड होता है रिटायर. क्या मीनिंग है जी इसका? दोबारा थक गया. रिटायर मतलब इस संसार में आओ, थको, जाओ, फिर रिटायर हो, फिर आओ, थकते रहो जब तक थक के दिमाग समझ में नहीं आ जाए कि क्या है वो. क्या है वो? चौपाई नहीं वो नहीं. क्या है वो? बेगार में ही पड़े हो, छूटत अति कठिनाई. राम कहते चलू, राम कहते चलू, राम कहते चलू भाई रे, नाही तो भव बेगार में ही पड़े हो, छूटत अति कठिनाई ने. बेगार क्या चीज है? नो इमोल्यूमेंट्स, कीप ऑन वर्किंग. वो हाल है हमारा. नो रियल इमोल्यूमेंट्स, काम करते रहो और फिर रिटायर, फिर अगले बार दोबारा हो. तो उसने कहा कि का त्वम कंज पलाशाक्षी, हे कमल नयनी तुम कौन हो? देखो क्या पोएटिक है. मतलब है कस्य असि इह, यहाँ पे क्या कर रही हो? कुतः सती, कहाँ से आई हो? इमम उपपुरिम भीरु, तुम बहुत टिमिड हो. किम चिकीर शशि, यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो? शम्स में, मुझे बताओ. एक सेंटेंस में उसने सब पूछ लिया. हाँ जी, कौन? हु इज गोइंग टू रीड? In the human form, Hmm. should utilize his intelligence by asking all these questions. Tato Brahma Jignasa. Just as Puranjana, the living entity, is asking
the unknown girl, where she has come from, what her business is, why she is present here, etc. These are the inquiries about Atma Tattva, realization. The conclusion is that unless a living entity is inquisitive about self-realization, he is nothing but an animal. Shrotavyadini Rajendran, Nrinanam Shanti Sahasracha, Apsyatam Atma Tattvam, Graheshu Grahamedinam. सो नारद जी ऐसे ही कहानी नहीं सुना रहे कि एक लव स्टोरी ऑफ गर्ल एंड बॉय. व्हाट ही इज सेइंग इज कि जैसे लिविंग एंटिटी आस्क्ड ऑल दीज क्वेश्चंस टू दिस गर्ल, सिमिलरली द लिविंग एंटिटी शुड आस्क द क्वेश्चन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. भैया मैं कौन हूँ? सेम क्वेश्चन वी हैव टू आस्क अबाउट आवर सेल्स इज वॉट नारद जी इज टेलिंग इज द रियल मीनिंग ऑफ द श्लोका. क्या? एक्सप्लेन टू मी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. सो आई हैव टू आस्क वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम, जो कि मुझे नहीं मालूम है. थ्योरी में कुछ भी बोलता रहूँ, रियलिटी में मुझे नहीं मालूम है. सच है. हु एम आई अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. ये क्वेश्चन जो मटेरियल इंटेलिजेंस से लिविंग एंटिटी पूछ रही है, नारद जी कह रहे हैं ये लिविंग एंटिटी को अपने आप से पूछना है कि भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कमिंग हियर. यहाँ आए क्यों? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? कोशिश क्या कर रहे हो करने की? एंड प्लीज एक्सप्लेन. तो वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू आवर सेल्स बिकॉज श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नराम संति सहस्त्र. सुनने के लिए हजारों लाखों चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन अपश्यताम आत्म तत्वम. पश्यताम मतलब देखना, अपश्यताम मतलब दिखाई नहीं दे रहा है. आत्म तत्वम दिखाई नहीं दे रहा है, सुंदर लड़की दिखाई दे रही है. क्वेश्चन तो आप पूछ रहे हैं उससे, लेकिन पूछना है ये नारद जी कितना गूढ़ उसको नॉलेज दे रहे हैं. बेसिकली हमें दे रहे हैं, वो तो सब सॉर्टेड है. हाँ जी, नेक्स्ट वन 4:25-27. हु विल रीड द ट्रांसलेशन? हाँ माता जी प्लीज. Puranjan asked, who are these 11 strong servants? Mind plus 10 senses. Who is the snake? Vital force. Kayete nupatayet ekadash mahabhatahan etabalalana subru oyam te purassarahan. Translation. My dear lotus eyes, who are those 11 strong bodyguards with you? And who are those 10 specific servants? Who are those women following the 10 servants? And who is the snake that is preceding you? So there you go. के एते अनुपतः, ये तुम्हारे जो अनुगामन करने वाले फॉलोअर्स हैं, ये कौन है भैया? एकादश महाभाटा, ये तो 11 लोग हैं. एक माइंड, ये नारद जी उसको समझाना चाह रहे हैं, पर कहानी ऐसे चल रही है. तुम्हारे साथ में कौन है? 11 लोग. ये एता वा ललना, ये जो पीछे पीछे इनके ललना यानी वुमेन यानी डिजायर्स घूम रही हैं. शुभ्रू ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल आइड है ये डिजायर्स भी. दूर से देखने में बहुत अट्रैक्टिव है. कोयम ये जो स्नेक है ये तुम्हारे साथ में कौन है? इसको हम भूल गए अभी तक. पुरह सारा. तो उन्होंने पूछा कि ये 11 कौन है और ये तुम्हारे साथ सांप कौन चल रहा है? एक सांप भी उस कन्या के साथ चल रहा था. उसका क्या मतलब है? हाँ अभी आएगा या पहले? हाँ जी. जो सांप है 5, वो 5 तरह के प्राणवायु हैं, एयर्स हैं, जो कि आप नेक्स्ट वाले पे जाइए, पढ़िए. द वाइटल फोर्स बीच में हाईलाइटेड. The vital force of a living entity includes the 5 kinds of air working within the body, which are known as prana, apana, vyana, samana, and udana. Prabhupada explains who are these 5. ये जो है ये लाइफ को चलाते रहते हैं. अगर ये 5 हट गए, भगवान जैसे ही ईश्वर सर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जैसे ही भगवान यहाँ से निकले, ये प्राण भी साथ में सोल के निकल लेते हैं. ये सोल के साथ साथ घूमते हैं, क्योंकि एक दूसरा शरीर भी है. खाली एक स्थूल है और दूसरा सूक्ष्म शरीर है.
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साथ में माइंड, सेंस और अहंकार के साथ में ये 5 वाइटल फोर्सेस उसको दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, जो वो दूसरी सिटी होती है। एक सिटी छोड़ के वो दूसरी सिटी जाता है। प्रभु एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर है, और तीसरा एक कारण शरीर है। वो भी है। तो कारण शरीर क्या होता है? कारण शरीर इज द स्वभाव। मन बुद्धि अहंकार इज द कारण। नहीं, कारण शरीर जो है, जैसे अंतःकरण में 4 है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। ये चारों जो हैं अंतःकरण में, इनसे जो त्रिगुणातीत स्वभाव बनता है, जो 3 मोड्स ऑफ से, वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का जो चर्चा है वो श्रीमद् भागवतम में इतनी नहीं है, लेकिन बाकी लिटरेचर्स में है। बट यू कैन से इट इज पार्ट एंड पार्सल इन अ वे ऑफ द सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर इज पार्ट एंड पार्सल, यू कैन से इट्स द फर्दर इनर ऑफ कोर ऑफ दैट। तो जो माइंड है और जो 10 कौन है जी? सेंसेस। ठीक है जी। और एक्चुअली द लिविंग एंटिटी नोन एज पुरंजन इज एम्बैरेस्ड बाय सो मच पैराफर्नेलिया। अब आप सोचिए, लिविंग एंटिटी के पास में कितनी सारी चीज़ें, सामग्री हैं, उसको संभालना है। क्या क्या है उसके पास में? लिविंग एंटिटी से पहले तो उसको संभालनी है बॉडी 9 गेट्स वाली, फिर उसके बाद में 5 जो स्नेक है वो है, फिर 1 मन है, फिर 10 वो है। मतलब कितनी सारी चीज़ें अटैच कर दी गई हैं हमारे साथ में। मुझे तो ये लग नहीं रहा था, मतलब आई कैन एक्सपीरियंस इट, कि जब मेरी तबीयत खराब होती है, मुंह से मैंने चाहे करोड़ों बार बोला हो, आई एम नॉट द बॉडी, बट एट दैट टाइम आई एम द बॉडी, आई कैन से फॉर माई सेल्फ, बिकॉज व्हेन आई एम सिक आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स अदर देन बॉडी। जो महात्मा है, जो जैसे वो है प्रेमानंद जी, इज वन ऑफ द एलिवेटेड सोल्स, वो लोग कह सकते हैं, हम खाली मुंह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट यस, जैसे हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे एक बार, हमारे एक सीनियर डिसाइपल है, वो कहने लगे कि मैं भगवत गीता ले करके घूमता रहता हूँ, पर मैंने पढ़ी अभी तक एक बार भी नहीं है। तो महाराज ने पूछा, फिर क्यों घूम रहा है? बोले, जिससे मेरी वाह वाह होती रहे। तो मैं छोड़ दूँ घूमना इसको लेके? उन्होंने कहा, नहीं, हरगिज़ मत छोड़ना, इसको लेके घूमते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इसे पढ़ोगे और जिस भाव से अभी तुम घूम रहे हो वो खत्म हो जाए। सेम थिंग, यस। सो दिस इज, एंड टुडे ही इज GBC lawyer, what I'm telling, Devakinandan Prabhu. So actually the living entity known as Puranjan is embarrassed by so much paraphernalia. All this paraphernalia simply constitutes different sources of anxiety. अब आप ये देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा एनालाइज करके, जितनी भी ये चीजें हैं 11 प्लस उनके साथ में hundreds, they are all causing anxiety. आप एक्सपीरियंस करो इसको। माइंड है, does it give anxiety? 100% दे रहा है। अच्छा, अब 10 सेंसेस हैं, चलो एक ही पकड़ लेते हैं। चलो, टच या टेस्ट एंजाइटी देता है कि नहीं? अच्छा खाया तो प्रॉब्लम। अभी हमारे यहाँ पे एक है ऑफिस में, तो बिल्कुल कंट्रोल में चल रहा था। मैं कहा, यार तू बड़ा यार, इतनी सी सब्जी, 1 रोटी। मैंने कहा, तेरे को क्या हो गया यार, 30-35 ईयर्स ओल्ड। तो खैर ये, मैं कहा, यार तेरा कंट्रोल बहुत बढ़िया है। तो कहने लगा, हाँ वैसे वो करता है, बट फिर लाइटर मोड में कहने लगा, जी अभी थोड़े दिन के बाद मुझे ना अपने होम टाउन जाना है, तो वहाँ सुबह ब्रेकफास्ट में कचौरी, दोपहर में ढोकला, नहीं दोपहर में दाल बाटी, और रात्रि में भी कहीं ऐसे ही कुछ खाना होगा। तो अगर अभी मैं थोड़ा कर लूँगा तो तब खा पाऊँगा। तो देखो एंजाइटी कितनी है। और ज़्यादा खा ले तो नंबरों के चक्कर में BP का नंबर, कोलेस्ट्रॉल का नंबर, SGOT, SGPT, ChatGPT, जितने भी हैं सारे के सारे। मतलब एक कथा में कितना इसमें है,
हाँ जी 4:25:28 कौन पढ़ेगा जी? मैं पढ़ूंगा। पढ़ो भैया। श्रीमद् भागवतम 4.25.28 हाँ जी। Translation. He compared her with all three and tried to find if she is married. My dear beautiful girl, you are exactly like the goddess of fortune, or the wife of Lord Shiva, or the goddess of learning, or the wife of Lord Brahma. Although you must be one of them, I see that you are loitering in this forest. Indeed, you are as silent as the great sages. It is that you are searching after your own husband. Whoever your husband may be, simply by understanding that you are so faithful to him, he will come to possess all opulences. I think you must be the goddess of fortune, but I don't see the lotus flower in your hand. Therefore, I am asking you where you have got that lotus. उसने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। बेसिकली व्हाट इज ही ट्राइंग टू फाइंड आउट? भैया इसकी शादी हुई है कि नहीं? सो लिविंग एंटिटी इज सर्चिंग फॉर material sense gratification. That is what Narad ji is trying to tell by reading this. He is not telling a story of love story कि उसको it's not like that. But what he is telling is he is trying to figure it out. That whether she is available. Whether she is available, because the living entity is wanting to enjoy sense gratification with the 11. अब good luck और bad luck वो लड़की भी material intelligence है, Same like the other. Yeah. वो भी यही ढूंढ रही है। एक और एक 11 वी विल सी। सो ही इज आस्किंग इन डिफरेंट वेज, बट वो इतनी खूबसूरत है। हाँ भैया, इट्स ओके। भाई साहब यू वांट? नो सीरियसली, नो प्रॉब्लम, पीने के लिए है भाई। हाँ जी, तो उसने क्या बोला? माई डियर ब्यूटीफुल गर्ल। अब वो इतनी खूबसूरत उसको लग रही है, और साथ में प्रभुपाद राइट्स दैट men are aggressive trying to get hold of the girl for material enjoyment. So he is praising from different angles. But what Narad ji is trying to tell, that living entity is trying to enjoy the material intelligence. क्योंकि उसको पता तो पड़ गया कौन कौन है इसके साथ. She is not alone, 11 और है इसके साथ में. So, my dear beautiful girl, you are exactly like goddess of fortune or wife of Lord Shiva. और गॉडेस ऑफ लर्निंग, वाइफ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. भैया तुम कौन हो? लक्ष्मी हो, तुम सती हो, सरस्वती हो, कौन हो तुम? ऑल्दो यू मस्ट बी वन ऑफ देम, आई सी दैट यू आर लॉटरिंग इन द फॉरेस्ट. जरूर उनमें से एक होगी. पता वो करना चाह रहा है, आगे क्या कर रहा है? इज दैट यू आर सर्चिंग, इज दैट यू आर सर्चिंग आफ्टर योर ओन हस्बैंड? क्या तुम अपना पति ढूंढ रही हो? अगर वो हाँ बोल दे तो बात खत्म, अगर ना बोला तो उसकी बात बन गई. ही इज सर्चिंग फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन. एंड देन इज ऑल्सो सेइंग यू आर वेरी फेथफुल, दैट्स व्हाई यू आर सर्चिंग, बट आई डू नॉट सी. तुम लक्ष्मी जैसी लग तो रही है, पर तुम्हारे हाथ में कमल का फूल नहीं है, तो शायद तुम लक्ष्मी तो नहीं हो. श्रीमद् भागवतम. सारा दिमाग लगा रहे हैं. सारा दिमाग लगा दिया भैया. समय क्या हो गया? 32. 9:32. कहाँ जी, कितना बजे तक करना है? आप लोगों की चॉइस है. मेरी कल छुट्टी है. हमारी भी छुट्टी. And I am also looking after this sense gratification. कोई इंटरेस्टिंग चल रहा है. We can 45 तक बच्चे जब तक, अगर भूख लग रही है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू बी होल्डिंग एंड यार ये तो मैटनी शो देख रहे हैं, हमें छोड़ दिया बाहर. हे भगवान. हाँ जी, आगे कौन पढ़ेगा? Prabhuji, one thing. हाँ, He will come to possess all opulences. Who is he? जो उसका हस्बैंड होगा. लेकिन कौन है? अभी पता पड़ेगी आगे, वो ढूंढ रहा. ये तीन घंटे की पिक्चर है, क्लाइमैक्स तो एंड में आएगा.
देखो किसी ने सोचा होगा भागवतम में ये, बट भाई साहब मीनिंग देखने जाओ तो खून के आंसू रो, और ऑर्डिनरी लेवल पे लो तो अलग है। यही है, नारद जी बहुत प्यार से समझा रहे हैं उसको, वो कितना इंटरेस्टेड हो गया होगा, ऑलरेडी उसके 10 बच्चे थे। He was a Daksh प्रजापति, he was given order to expand. हाँ जी, कौन पढ़ेगा आगे? जिसने नहीं पढ़ा हो पहले वो पढ़ ले। हाँ जी, संतोष प्रभु जी, संतोष प्रभु आप डाउनलोड करके लाए हो क्या? बिकॉज आई थॉट ओके देखते हैं। किसी और हाँ जी। 4.25.29. He requests to associate with her. Living No, before this. In this verse. हाँ। In this verse, all these inquiries are made by King Puranjan. The living entity who is bewildered and does not know how to employ his intelligence. Intelligence should be employed in the service of the Supreme Personality of Godhead. Here the living entity is trying to use the intelligence for material sense gratification. This is what he is trying to tell Puranjan. Bhaiya, King Puranjan is trying to employ his intelligence for sense gratification, but intelligence should be employed in the service of Supreme Personality of Godhead. But who can apply intelligence in the service of the Lord? तेषाम सतत युक्तानाम, कुंजी यही है इसकी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, दोज हु डू भजताम प्रीति पूर्वकम एंड डिस्कस लाइक वी आर डूइंग, ददामि बुद्धि योगम तम, तब मिलती है वैसी बुद्धि, वो फ्री में नहीं मिलती, चक्कर खाली है। अब प्रचीना भारी को अब मिल रही है, वो क्यों मिल रही है? बिकॉज ही इज डिस्कसिंग विद नारद जी। अब उसको धीरे धीरे हो रहे यार मैं क्या कर रहा था, मैं क्या क्या किया मैंने, और इसका मीनिंग क्या है? प्रभु जी इसमें तो अजामिल वाला अजामिल वाज नॉट डिस्कसिंग, वाज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड ही गॉट दैट अजामिल का तो प्रभु जी वो भगवान ऐसे केसेस, एग्जांपल। इस्कॉन में एक डिवोटी, उनका नाम है अजामिल दास। सही में अजामिल का नाम ऐसे ही, अजामिल ऐसे ही उसके बच्चे का नाम नहीं रख दिया था गांव में। अब वो ये चर्चा कहीं और चली जाएगी। गांव में उसका जितना जो खराब बिहेवियर था वो मशहूर था। तो एक बार संत लोग आए उसके गांव में, उन्होंने पूछा भाई हम प्रसाद कहाँ ले सकते हैं? किसी महात्मा का, किसी गृहस्थ का, गृह में थी नहीं, किसी गृहस्थ का जो भगवान की भक्ति करता उसका घर बताइए, हम जाके भगवत प्रसाद लेंगे। तो उन्होंने चढ़ाने के लिए अजामिल का घर का पता दे दिया। अब वो वहाँ पहुँचे, वहाँ तो तमाशा ही कुछ और। उसके तो 85 या किस उम्र में उसका 10वां बच्चा हुआ था, 9वां या 10वां जो भी था वो। हाँ, तो उन्होंने कहा महाराज वो भी, उसने पहले बहुत अच्छे काम किए थे। ही वॉज अ वेरी लर्नड पर्सन एंड अ वेरी गुड वैष्णव एट वन टाइम टिल ही meditated on the prostitute. Prabhupada writes in Bhagavatam. He actually saw a prostitute embracing the person. He came home and he meditated on it. That is where he got corrupted. ये meditation का बड़ा प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा बच्चे हम तुम्हारे यहाँ पे कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। You have kicked out your parents, your beautiful wife, your children. What is this you are doing? तो उसकी समझ में आया, उसने कहा महाराज जो जैसा भी हो, अब आप मेरे घर आए, आप मेरे कल्याण का रास्ता बता दो। सो द सेंट सेड बेटा अपने सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख लेना बस। एंड दे वेंट ऑफ। वहाँ से कहानी है। ओके, लेट्स कम बैक हियर। सो हियर द लिविंग एंटिटी इज ट्राइंग टू यूज द इंटेलिजेंस फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, but Prabhupada writes King Puranjan is being advised that actually Narad ji is telling Prachina Bhari intelligence should be employed in the service of the Supreme Lord. हाँ जी, अगला। He requests to associate with her. Living entity wants the material intelligence to enjoy matter with mind plus 10 senses. Oh greatly fortunate one, it appears that you are none of the women I have mentioned, because I see that your feet are touching the ground, but
if you are some woman of this planet, you can, like the goddess of fortune, who accompanied by Lord Vishnu, increases the beauty of the Vaikuntha planets, also increase the beauty of the city by associating with me. You should understand that I am a great hero and a very powerful king on this planet. हाँ, उसने बोला जी ऐसा है, लगता तो नहीं है आप तीन में से हो, क्योंकि आपके पैर धरती पर टिके हुए हैं मोस्ट। उसने कहा देखो भाई ऐसा है, अगर ऐसा है मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ, और अगर तुम देखो यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू कैन एसोसिएट विद मी, इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ दिस सिटी बाय एसोसिएटिंग विद मी। सिटी एक ही है, उसमें ही मटेरियल इंटेलिजेंस है, उसमें ही लिविंग एंटिटी है। लिविंग एंटिटी इज टेलिंग मटेरियल इंटेलिजेंस you join me. Why? Because material intelligence is pulled by the mind, mind is pulled by the senses, and therefore the material intelligence is pulling the living entity. So he is saying, let us, in this 9 whole wala body hai, let us unite in this, and I am a great hero and a very powerful king on this planet. Prabhu ji 942 45 closure. हाँ जी, next. आप लोग घर में डाउनलोड कर लिया करिए, बिकॉज यहाँ पे कई बार चलता नहीं है ना। 425:30 translation. Certainly, your glancing upon me today has very much agitated my mind. Your smile, which is full of shyness but at the same time lusty, is agitating the most powerful cupid within me. Therefore, O most beautiful, I ask you to be merciful upon me. So, attracted by material intelligence is influenced by the mind and senses. The living entity gets agitated. The mind of the living entity gets agitated by the smile of the lusty intelligence influenced by the mind. And therefore he is saying, I ask you to be merciful upon me. Last we will do. Who is going to read? Mataji, you would like to read? पढ़िए 4:25:31. Translation. My dear girl, your face is so beautiful with your nice eyebrows and eyes, and with your bluish hair scattered about. In addition, very sweet sounds are coming from your mouth. Nonetheless, you are so covered with shyness that you do not see my face to face. I therefore request you, my dear girl, to smile and kindly raise your head to see me. So basically, Narad Muni is telling, Bhaiya, living entity gets so much entrapped by the material intelligence. Now the living entity is begging to material intelligence to look at him, so that he can enjoy the material intelligence with the material mind, with the 10 senses, followed by hundreds of desires. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki. Any questions, corrections, comments? Yes. लास्ट में जो काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से Yes. ये दिस इज व्हाट दैट। Yes. Exactly. Desire से, काम से, जब पहले काम उत्पन्न होता है, फिर जब काम की पूर्ति सही तरीके से नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से जयराम जी की। फिर बैक टू दिस स्टोरी। हाँ जी, एनी कमेंट्स, एनीथिंग? हाँ जी। Before coming to this session, we don't know the 10 senses, 10 everything. How does the other person knows that we have these 10 senses, 9 gates, everything? The other man does not know. Other man meaning? Means who is not in the congregation. हाँ। So I want to know that how to know to other persons. So question is? Question is how the man should engage in these things. अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक श्रीमद् भागवतम रूपी संत नहीं मिलेंगे तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती, या रामायण जैसे संत नहीं मिलेंगे तब तक नहीं हो सकता। सब स्क्रिप्चर्स में दे रखा है, लेकिन क्या करें।
एक के बाद हमको थकाने के लिए भेजा है भगवान ने, सब थक थक के बैठ के। आप वैकेशन भी हो के आओ, आप दुनिया की सबसे बड़ी वैकेशन हो आओ आप थक करके आनंद आपको घर में ही आएगा। ये प्रूफ है कि हम सब यहाँ थक रहे हैं, हमें आनंद वैकुंठ या गोलोक में ही आएगा, और कोई जगह है नहीं। या जहाँ पे भी भगवान को प्लग इन कर लिया वहाँ पे ही वैकुंठ हो जाता है, तो वहाँ आनंद आएगा, वहाँ एंग्जाइटी नहीं होगी। वाया कुंठा, बिना कुंठा के। वाई मीन्स नहीं, कुंठा मीन्स एंग्जाइटी, वो जगह जहाँ कुंठा नहीं है। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की है। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग फॉर 15 minutes एक्स्ट्रा।